Assalamu alaikum everyone, welcome you all to the Life Science Academy. So today we are starting our second lecture that is related to the genetics for CSIR and all national related exams. So in this lecture we will discuss the terminology that is related to the genetics. Okay, terminology समझना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके आपको आगे चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि हम यही टर्म्स आगे जाके यूज़ करेंगे। जितने भी हम आगे लेक्चर्स डिस्कस करेंगे सब लेक्चर्स में यही टर्म्स यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ अलील, व्हाट इज़ होमोजाइगस, व्हाट इज़ हेटेरोजाइगस कंडीशन, व्हाट इज़ हेमीजाइगस कंडीशन, what are the back crosses, what is test cross. So these are the terms that I think you should be fully familiar with. So let me take our first term, that is the allele. So allele is that I have already discussed it in the first lecture in chromosomal basis of inheritance, that alleles are alternate forms of a same gene present on homologous chromosome on same loci or on same locus भी हम कह सकते हैं, on same locus, on same locus. Okay, so for example this is a homologous pair of chromosome. This is for example chromosome number 1, this is its paternal copy, and this is its maternal copy. So what will be the allele? For example एक क्रोमोसोम पे तो कई सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट्स के केस में लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ जीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ द प्लांट. ऑन पैटर्नल साइड इट इज लोकेटेड ऑन दिस पोजिशन, that means on its homolog on maternal side on exactly the same location, on exactly the same locus, there must be a gene that should also responsible for height of the plant. So these two genes now will be called as alleles of each other. The allele may be in homozygous condition, that means both the alleles of a gene will be of same type, or it may be in heterozygous condition, that means the two alleles of a gene may be of different type, that we will discuss. So this is the allele. The definition will be that it is alternate form of a same gene. So these are the alternate form of the same gene present on homologous chromosome. This is a homologous chromosome on same locus, that is important. Okay, so that's all about the allele. Next is the homozygous or pure condition, किसको हम बोलते हैं, when both the alleles of a gene are of same type, the condition will be called as homozygous condition. So for example if we take case second here, so this is homologous pair of chromosome. For example here is a gene that is responsible for height of the plant, and it is in dominant condition. Dominant matlab it is in functional condition from both from paternal side as well as from maternal side. So both is capital T and capital T. We call this condition as homozygous dominant condition. That means both the alleles are of same type. It may be homozygous recessive. For example here is a gene that is responsible for shape of the seed or shape of the plant, shape of the we can say shape of leaf. For example it is in recessive condition, or we can say non-functional. So paternal side it's also paternal, it's maternal side. So this is maternal, this is paternal, for example, whatever. Okay, so this is paternal, this is maternal chromosome. So दोनों ही साइड से ये जीन जो है इट इज़ नॉन फंक्शनल, देन इट विल बी कॉल्ड, द कंडीशन विल बी होमोजाइगस रिसेसिव allele. हम इसको होमोजाइगस रिसेसिव बोल सकते हैं. ठीक है, होमोजाइगस इसलिए क्योंकि दोनों कॉपी जो प्रेजेंट है जीन की वो सेम स्टेटस में प्रेजेंट है, चाहे वो डोमिनेंट स्टेटस में हो चाहे रिसेसिव स्टेटस में प्रेजेंट हो. नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज हेटेरोजाइगस. Heterozygous is a condition where both the alleles of a gene are of different type. They will so that means on homologous chromosome, for example case 3, you can see on homologous chromosome here it is capital T, and on it is homolog on the same locus the gene present is, the allele present is small t. So this will constitute a heterozygous condition. Okay, these are the simple terms, there is nothing new, there is nothing rocket in it. Let me proceed to the another term, that is the hemizygous condition. That is important. Hemizygous is a condition when only
only one allele of a gene is present. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी केस में ह्यूमन्स के केस में अगर आप मेल्स की बात करोगे तो मेल्स के केस में जितने भी एक्स लिंक्ड जीन्स हैं वो सारे इसके सारे हेमीजाइगस कंडीशन में है। दैट मीन्स हर एक एक्स लिंक्ड जीन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स उसकी सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसकी बेस्ट एग्जांपल देते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स। सो दिस विल बी द हेमीजाइगस कंडीशन। Another is the back cross. What is back cross? Back cross के दो टाइप्स है। एक टाइप जो इसका है that is the out cross और दूसरा जो इसका टाइप है that is the test cross. Out cross में हम क्या करते हैं, F1 को लेते हैं, हम आगे देखेंगे F1, F2, F3 वगैरह क्या, F1 को डोमिनेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो जो वहाँ से वैसे कोई आउटपुट नहीं आता है। You cannot conclude anything from the out cross. So it is not going to give you any kind of special result or something like that. But what is important is test cross here, where we cross F1 with the recessive parent, and that will tell you two important conclusions that I will discuss in the next. So let me discuss in detail what actually the test cross is. देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल आपने दो प्लांट्स को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद आपको ऐसा प्लांट आपके पास आया T एंड T, कैपिटल T एंड स्मॉल t। अब क्योंकि हमें पता है मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम क्या बोलते हैं कि हर एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दो अलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मेंडल साहब ने कहा था कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ यूनिट फैक्टर, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ यूनिट फैक्टर। और उस फैक्टर को आगे जाके हमने कन्वर्ट किया था किसमें, पुनेट साहब ने उसको चेंज किया था जीन में। तो हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल दिस कैरेक्टर इज फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ प्लांट, कैरेक्टर इज हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट जो है इसको जीन कंट्रोल करता है, फॉर एग्जाम्पल टी जीन। कौन सा जीन, जीन। और अब इस टी जीन की या तो ये टी जीन फंक्शनल होगा, डोमिनेंट होगा, चाहे ये टी जीन या इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, नॉन फंक्शनल या रिसेसिव फॉर्म हम इसको बोलते हैं। अब आपके पास एक प्लांट है और उस प्लांट का जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिनोटिपिकली ये प्लांट कैसा दिखेगा, इट विल बी टॉल, क्योंकि इसके पास डोमिनेंट टी प्रेजेंट है और लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें यही बोलता है दैट द डोमिनेंट एलील expresses in homozygous as well as in heterozygous condition that we will discuss in the upcoming lectures. So phenotypically this plant will be what, will be tall phenotypically. फिनोटिपिकली ये प्लांट क्या होगा, टॉल। अब अगर आपके पास एक और प्लांट है उसका जीनोटाइप है टी एंड टी, बट यू डोंट नो द जीनोटाइप, क्योंकि जीनोटाइप देखने के लिए आपको नीचे जाना है। आप बाहर से देख रहे हो, फिनोटिपिकली ये प्लांट कैसा दिखेगा, इट विल आल्सो बी टॉल, ये भी कैसा होगा, टॉल प्लांट होगा फिनोटिपिकली। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो डोमिनेंट जीनोटाइप, जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, सो इट इज डोमिनेंट फिनोटाइप टॉल, जो यहाँ पे है टॉलनेस इज अ डोमिनेंट फिनोटाइप। अब अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा ये टॉल फिनोटाइप जो है इसका जीनोटाइप क्या है, जो प्लांट आपके पास गिवन है, जो प्लांट आपको दिया गया है इसका, क्योंकि फिनोटिपिकली तो ये टॉल दिख रहा है बाहर से, लेकिन अगर हमें अंदर से ये देखना होगा, टॉल तो दो कंडीशंस में पॉसिबल है, चाहे ये कंडीशन होगी तब भी टॉल होगा, चाहे ये कंडीशन होगी तब भी टॉल होगा। अब अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये प्लांट जो है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है या होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट है उसको बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस देखो बेटा क्या करते हैं, हम डोमिनेंट फिनोटाइप लेंगे, डोमिनेंट फिनोटाइप क्रॉस्ड विथ रिसेसिव फिनोटाइप,
crossed with recessive dominant phenotype with recessive genotype. इसके बीच हम क्रॉस करेंगे और हमें इस क्रॉस से ये पता चलेगा ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप आपके पास था क्या ये डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में था या हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट था. फॉर एग्जांपल केस फर्स्ट हम लेते हैं. डोमिनेंट फिनोटाइप को हम एक बार होमोजाइगस कंडीशन में ले लेते हैं तो इट विल बी कैपिटल T एंड कैपिटल T. क्रॉस किसके साथ करना है? रिसेसिव फिनोटाइप, रिसेसिव जीनोटाइप, इट विल बी स्मॉल t एंड स्मॉल t. क्लियर? अब जब गैमेटोजेनेसिस होगी गैमेटोजेनेसिस में यहां से गैमीट्स बनेंगे. यहां से कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे? कितने तरह के? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप. सो वन टाइप ऑफ गैमीट विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट विल बी कैपिटल T. यही बनेगा ना. कितने बनेंगे उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कितने तरह के बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है. यहां से कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे? यहां से भी बनेगा एक टाइप का गैमीट, ये वाला गैमीट बनेगा. गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन, जो मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में क्रोमोसोमल बेस ऑफ इनहेरिटेंस में. जब फर्टिलाइजेशन होगी यू विल गेट अ इंडिविजुअल दैट विल बी कैपिटल T एंड स्मॉल t. व्हाट विल बी इट्स फिनोटाइप? टॉल. फिनोटिपिकली इसका जो फिनोटाइप है दैट इज टॉल. दैट मीन्स are you expecting any recessive phenotype from this cross? No, not at all. All the time if you cross a dominant phenotype having genotype homozygous dominant, if you cross it with a recessive parent you will always end up with the tall plants. So अगर आपके पास लास्ट में सिर्फ tall plants बन रहे हैं that means जो आपके पास unknown genotype था dominant phenotype का वो क्या था? आप कंक्लूड कर सकते हो कि वो जीनोटाइप जो प्रेजेंट था उस टाइम कौन सा जीनोटाइप रहा होगा वहां पे? ये वाला जीनोटाइप रहा होगा. सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन? कंक्लूजन विल बी जीनोटाइप ऑफ unknown genotype of unknown dominant phenotype was what? It was homozygous dominant. Homozygous dominant. Okay. So case number second. Case 2. So what will be case 2? आपके पास जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका जीनोटाइप अब हम हेटेरोजाइगस ले लेते हैं. सो इट विल बी कैपिटल T एंड स्मॉल t. क्रॉस किसके साथ करना है? टेस्ट क्रॉस में क्रॉस हमेशा रिसेसिव जीनोटाइप के साथ होगा. इट विल बी स्मॉल t एंड स्मॉल t. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस होगी तो यहाँ से कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे? दो तरह के. एक तो कैपिटल T बनेगा, एक स्मॉल t बनेगा. और यहाँ से कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे? यहाँ से एक तरह का गैमीट बनेगा, दैट विल बी स्मॉल t. एक गैमीट नहीं बनेगा. प्लीज आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन जस्ट टू मेक श्योर दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर. सो यहाँ से एक ही तरह का गैमीट बनेगा, वो ऐसा गैमीट होगा. अब जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन इसके और इसके बीच भी होगी, यू विल एंड अप विथ T
टी एंड टी, फर्टिलाइजेशन इसके और इसके बीच भी हो सकती है, इट विल बी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये इंडिविजुअल कैसा हो, ये प्लांट कैसा होगा, इट विल बी टॉल, और ये प्लांट कैसा होगा, डिवार्फ, डिवार्फ प्लांट होगा, छोटा होगा हाइट में। रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 और ये भी बनेगा 1, 1:1 रेशियो। सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या आएगा इससे, कंक्लूजन ये आएगा, अगर आपको F1 जो आपका बन रहा है सॉरी F2 जो आपका बन रहा है, अगर F2 बन रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:1, 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव, you can conclude that the genotype of unknown dominant phenotype was heterozygous dominant, not homozygous dominant. That means genotype of unknown dominant phenotype was heterozygous dominant. Heterozygous dominant, that will be the conclusion. So by test cross you can identify, you can find out the genotype of unknown phenotype. So these were some terms that were important for this genetics जिसमें हमने टेस्ट क्रॉस का जिक्र किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, दैट इज दी, now we will move in the next lecture, we will move to the Mendelian principles, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उन्हीं लेक्चर में मैं अलग अलग छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊंगा, क्योंकि पहले जो पहला वीडियो मैंने बनाया वो उसके कमेंट्स देख के मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं बनाने हैं, वीडियो छोटे छोटे ही बनाने, और हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में जो भी टॉपिक हम डिस्कस, जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, पूरे वीडियो में वो टॉपिक कंप्लीट हो, इंक्लूडिंग इट्स न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द CSIR एंड अदर रिलेटेड एग्जाम्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स, आई हैव ऑल दोज क्वेश्चंस अवेलेबल विथ मी, सो आई कैन टेक, और आई विल ट्राई टू टेक as much questions as possible. Thank you so much.